ناظرین آداب، منصف ٹی وی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جے کے ایل ڈائری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمران علی بیگ۔ سب سے پہلے سرخیوں پر ایک نظر۔ اچھن علاقے میں کشمیری پنڈت کی ہلاکت کی تحقیقات شروع، ریاستی تحقیقاتی ایجنسی کرے گی جانچ۔ مجھے خوشی ہے کہ راہل گاندھی کی معطلی سے اپوزیشن پارٹیاں متحد ہوئیں، محبوبہ مفتی کا بیان، کہا ملک کی جمہوریت خطرے میں۔ انڈین نیشنل کانگریس جمہوریت کو بچانے کے لیے سب کچھ کرے گی، سابق مرکزی وزیر سلمان خورشید کا بیان۔ اور نیوا کالونی ڈانگر پورہ کے رہائشیوں کا سمارٹ میٹرز کی تنصیب پر احتجاج۔ اور آئیے اب خبریں جانتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ کے اچھن علاقے میں گزشتہ ماہ نامعلوم مسلح افراد کی جانب سے ہلاک کیے جانے والے کشمیری پنڈت کی ہلاکت کے سلسلے میں آج ایس آئی اے نے ضلع کے اچھن علاقے میں تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ اس ضمن میں ایس آئی اے کی ایک ٹیم جس کی سربراہی ڈی ایس پی کر رہے ہیں جائے وقوع پر پہنچ گئی ہے اور اس ہلاکت کے سلسلے میں ملوث افراد کے فرار ہونے کی اور اس ہلاکت کے دیگر پہلو کے بارے میں جانکاری حاصل کی جا رہی ہے، جبکہ یہاں کے مقامی لوگوں سے بھی تحقیقاتی ایجنسی کی جانب سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ 26 فروری کو اچھن علاقے میں ایک پنڈت کو نامعلوم مسلح افراد نے گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ نامعلوم مسلح افراد نے ایک کشمیری پنڈت پر نزدیک سے گولیاں چلائیں، جس میں سے 3 گولیاں اس کے سینے میں پیوست ہو گئیں اور وہ ہلاک ہو گیا۔ اگرچہ اس کو علاج کے لیے ضلع اسپتال منتقل کیا گیا، تاہم وہ جاں بھر نہ ہو سکا، ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دیا۔ پنڈت کی شناخت سنجے کمار شرما ولد کاشی ناتھ کے طور پر ہوئی ہے اور یہ بطور بینک سیکیورٹی گارڈ کام کر رہا تھا۔ پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی کا کہنا ہے کہ بھارت کی جمہوریت پر اس وقت بڑا حملہ ہوا جب سال 2018 میں مقامی پارٹی نے اعلان کیا تھا کہ وہ جموں کشمیر میں سرکار بنائیں گے، تاہم اس کو ہونے نہیں دیا گیا۔ مفتی نے کہا کہ مجھے خوشی ہے کہ راہل گاندھی کو لوک سبھا کی رکنیت سے معطل کرنے پر اپوزیشن پارٹیاں متحد ہو گئی ہیں، یہ خوش آئند قدم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی صورتحال اس وقت نازک ہے اور ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام اپوزیشن پارٹیاں ایک ساتھ مل کر بھارت کی جمہوریت کو بچانے کے لیے آگے آئیں۔ محبوبہ مفتی نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ جمہوریت کو بحال رکھنے اور ملک کو بچانے کے لیے تمام پارٹیاں ایک ساتھ ہو کر کام کریں گی، تاہم ملک کی جو جمہوریت اس وقت خطرے میں ہے اس کو مکمل طور پر تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ محبوبہ مفتی نے ان تمام باتوں کا اظہار سری نگر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اٹیک جو ہے اسی جمہوری نظام پہ ہو رہا ہے، اسی کانسٹیٹیوشن پہ ہو رہا ہے جس کے بلبوتے پہ یہ ملک بنا ہوا ہے، اور شاید کہیں نہ کہیں بدقسمتی سے اس کی شروعات 2018 میں تب ہوئی جب یہاں کی تمام اپوزیشن پارٹیز، چاہے پی ڈی پی تھی، این سی تھی، کانگریس تھی، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے پاس میجورٹی ہے، ہم یہاں ایک چنندہ سرکار بنائیں گے۔ تو اگر اس وقت پورے ملک کی جو اپوزیشن پارٹیز اکٹھے نہیں ہوں گی جمہوریت کو بچانے کے لیے، کانسٹیٹیوشن کو بچانے کے لیے، راہل گاندھی کی بات نہیں ہے۔ It is not about survival of just Rahul Gandhi, it is about survival of democracy, constitution. کیونکہ چاہے ہماری جوڈیشری ہو، ہمارے میڈیا ہو، ہمارا ایگزیکیوٹیو ہو، تو جو بھی اس وقت جو بھی پلرز ہے ڈیموکریسی کے، they are all shaken. ان کو سب کو سبجوگیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی، تو اس لیے مجھے امید ہے کہ ہم نے دیکھا کہ اسرائیل میں ہو، فرانس میں ہو، کیسے وہاں جب لوگوں کو لگا کہ جمہوریت کو کمزور کیا جا رہا ہے، پارلیمنٹ کو جو ہے کہیں نہ کہیں کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جوڈیشری کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو وہاں لوگوں نے ایک ساتھ جوڑ کے سڑکوں پہ آ گئے۔ تو میں امید کرتی ہوں یہاں جو اپوزیشن پارٹیز نے ایک انیشیٹو لے لیا ہے ٹو کم ٹوگیدر and defend the soul of this country, which is a democracy and which is the constitution of this country. So we hope they move forward on the same lines, and Congress
as an elder brother, gives them enough space to exist along with them side by side. Thank you. श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सलमान खुर्शीद ने इल्ज़ाम आयद किया कि अडानी के घोटाले पर पार्लियामेंट में श्री राहुल गांधी की तकरीर के सिर्फ 9 दिन बाद उनके खिलाफ हतक इज़्ज़त का मुकदमा दोबारा जिंदा हो गया। कांग्रेस सदर श्री मल्लिकार्जुन खड़गे की राज्यसभा में तकरीर और जनाब राहुल गांधी की तकरीर से अडानी घोटाले के हवाले से इंतहाई मखसूस हवालाजात पार्लियामेंट के रिकॉर्ड से खारिज कर दिए गए थे। हम मुल्क में देख रहे हैं वहाँ और जो हम यहाँ जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं उसके बावजूद, और उन्होंने इस बात को आपके सामने रखा कि मैंने अपनी माँ से पूछा कि हमारा घर कहाँ है, और माँ ने कहा कि हमारा कोई घर नहीं है। तब मुझे ये समझ में आया कि मेरा घर यहाँ की आवाम के बीच में ही मेरा घर है, और इन्हीं के बीच में मैं रहूँगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा घर है। तो उनसे मकान छीनने की किसी ने आज कोशिश की है। वो एमपी थे, उनको मकान मिला था, उनको रेजिडेंस मिला था, वो छीनने की कोशिश की है, लेकिन उनका घर नहीं कोई छीन सकता। और इसलिए मुझे कहने में फ़ख्र है और खुशी है कि मैं इस बात को कश्मीर की रैली में कह रहा हूँ, जहाँ उन्होंने आकर अपनी ज़बान से ये कहा और दिल से ये बात उनके निकली थी कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि घरों में अगर घर की निशानदेही करूँ तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि यही मेरा घर है, यहीं से मैं आया हूँ, यहीं से मेरे बुज़ुर्ग आए हैं और यही मेरा घर है। तो इसलिए घर का आज सवाल है। हम सब के लिए ये मुल्क हमारा घर है, हिंदुस्तान हमारा घर है, और इस घर के जो हालात हैं, वहाँ जो कुछ हो रहा है, उस पर जाहिर है हमको चिंता है, हमें तकलीफ़ है, शिद्दत की शिकायत है, और इसमें हमारी जुस्तजू कि इस घर को हम महफूज कैसे रख पाएंगे। और घर का एक पहलू यहाँ की जमहूरियत है, घर की जमहूरियत है। ये घर जमहूरियत से अलग नहीं किया जा सकता, और इसलिए जमहूरियत पे जब वार होता है तो यकीनन हम सबको बड़ी तकलीफ़ होती है, और इसलिए आज उसको बयान करने हम आपके सामने यहाँ मौजूद हैं कि इस वक्त एक ताकतवर ऑपोजिशन को तभी हम बना पाएंगे जब हम लोग सब इकट्ठा हो जाएंगे। अलग अलग अगर हम अपनी गाड़ी अलग अलग चलाएंगे तो मुमकिन है कि हम इस गवर्नमेंट को वो जवाब ना दे सकें जो इस वक्त लाजमी है और जो इस वक्त। कस्बे पुलवामा के नेवा कॉलोनी डांगरपुरा इलाके के मकीनों ने अपने इलाके में बिजली के स्मार्ट मीटरों की तनसीब के खिलाफ एहतजाज किया। इलाके में स्मार्ट मीटर्स लगाने के इक़दाम के खिलाफ सैकड़ों मकामी लोग, जिनमें ज़्यादातर ख़वातीन थीं, सड़कों पर जमा हो गई। मुजाहिरीन ने इलाके की मेन रोड ब्लॉक कर दी, जिससे इलाके में ट्रैफिक जाम हो गया। मुजाहिरीन का कहना था कि उनके मुआशी तौर पर कमज़ोर पस मंज़र के पेश नज़र वो अपनी ज़रूरियात पूरी करने से कासिर हैं। उन्हें डर है कि स्मार्ट मीटर उनके माहाना बिजली के बिल में इजाफ़ा कर देंगे। फीस गुतुल तुम बरस सख्ती ये सारी मजूर पेश दोहस दिना शाम दिवान नई मीटर लागे नई करो तो करो मजूर पेश दोहस दिना शाम दिन आवाज कि दिन फीस ज़िला तरक्याती कमिश्नर सूपियाँ सचिन कुमार विश्या ने ज़िले सतह की जायज़ा कमेटी और ज़िला मशावरती कमेटी DLRC के इजलासों की सदारत की, ताकि माली साल की 31 दिसंबर 2022 को ख़त्म होने वाली तीसरी सहमाही के लिए बैंकों और लाइन डिपार्टमेंट की कारकर्दगी का जायज़ा लिया जा सके। मीटिंग के दौरान मुख्तलिफ सरकारी स्पॉन्सर्ड स्कीमों के निफाज में बैंकों की जानिब से पेशरफ्त और कामयाबियों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। DDC ने बैंकों पर ज़राअत और इससे मुंसलिक
सरगर्मियों में कर्ज देने पर जोर दिया और उन्हें महकमे के साथ मिलकर काम करने और मुख्तलिफ शोबों में क्रेडिट प्लान के बहाव को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ बैंकिंग स्कीमों के बारे में लोगों में बेदारी फैलाने के लिए कैंप लगाने की तलकीन की। शहरी एक्शन प्रोग्राम के तहत गांदरबल पुलिस के ज़ेर एहतमाम फुटबॉल टूर्नामेंट आज गुडवारा स्टेडियम में FC तोला मोला और अथवास FC के माबैन एक अजीम शान टूर्नामेंट फाइनल के साथ इख्तिताम पजीर हुआ, जिसे FC तोला मोला ने 2 गोल से जीत लिया। ग्रैंड फाइनल की सदारत SSP गांदरबल श्री निखिल बोरकर IPS ने की, जिसमें एडिल भी शामिल थे। SP गांदरबल जनाब फेरोज़ JKPS फाइनल मैच में SSP गांदरबल ने टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए तमाम टीमों की तारीफ़ की। ख़ास तौर पर दोनों टीमों को ग्रैंड फाइनल खेलने पर मुबारकबाद दी गई। बाद अज़ा उन्होंने ज़िले के नौजवान और उभरते हुए खिलाड़ियों पर जोर दिया कि वो अपने जहनों को फुटबॉल, वॉलीबॉल और दीगर खेलों जैसे खेलों के ज़रिए अपने ख़यालात और तख़य्युल को तलाश करने की इजाज़त दें। टूर्नामेंट गांदरबल पुलिस ने स्टार्ट किया था, फुटबॉल टूर्नामेंट सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत SSP गांदरबल ने किया था और आज SSP गांदरबल ने उसको कंक्लूड किया है। फाइनल मैच था आज टूर्नामेंट का, तो इसमें काफ़ी सारे बच्चों ने, लोकल स्टूडेंट्स ने और आवाम ने, हर तबके के लोगों ने शिरकत की और इसका गेम का मज़ा लिया। तो मकसद इसका यही था कि आसपास के जो जितने हमारे यूथ हैं इनको ड्रग्स और दूसरी नेगेटिव एक्टिविटीज़ जो करते हैं उनसे दूर रखने के लिए स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करें, पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें। यही इस सिलसिले का मकसद था। शुक्रिया। पिछले हफ्ते हमने टूर्नामेंट वादी में मौसम सरमा के दौरान सैलानियों की आमद गैर मामूली है, जिससे सियाहत शोबे से जुड़े लोगों में काफ़ी खुशी पाई जाती है। दरअसल साल की शुरुआत के साथ ही वादी में सैलानियों की आमद में काफ़ी इजाफा देखा गया। पेश है एक रिपोर्ट। इस मर्तबा साल की शुरुआत ने सयाहती शोबे से वाबस्ता लोगों में उम्मीद की नई किरण पैदा कर दी है। सयाहती शोबे से वाबस्ता जैसे होटल व हाउस बोट मालिकान, शिकारा बान, सफर खिदमात अंजाम देने वाले एजेंटों और दस्तकारी शोबे से ताल्लुक रखने वाले लोगों में उम्मीद की एक किरण पैदा हुई है कि इमसाल भी सयाहती सीजन उरूज पर रहेगा। जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ज़बरदस्त मेहनत की है यहाँ पे टूरिज़म को लाने के लिए और बड़ी हद तक कामयाब भी हो चुकी है। यहाँ के रियासत के जो डिपार्टमेंट टूरिज़म डायरेक्टर साहब है या उसकी टीम है वो भी हर रियासत में चले गए हैं, एग्जीबिशंस वहाँ पे किए हैं, रोड शोज़ हुए हैं। उस तरह से उसका नतीजा ये है कि आज हमारे वादी कश्मीर में इस वक्त सारे होटल हाउस बोट्स सोल्ड आउट है। पीरियड ऑफ टाइम मुझे लग रहा है मार्च से ही हमारा जो फ्लो है वो अच्छा लग रहा है, मतलब जो फुटफॉल है टूरिस्ट का वो ठीक लग रहा है। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक्सपेक्टेशन है कि ये नंबर अप ही होगा इंशाल्लाह ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। वहीं महकमे सयाहत का कहना है कि फरवरी में ही 1 लाख से ज्यादा सयाह वादी वारिद हुए हैं और वादी के दिलफरेब नज़ारों से खुद को लुत्फानंदोज हो रहे हैं। चूंकि माह जनवरी में भी अच्छी खासी तादाद में सयाह वादी वारिद हुए। महकमे सयाहत के शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता साल भी जनवरी में करीब 62,000 और फरवरी में 1,05,000 सयाह वादी वारिद हुए थे। नाज़िर सयाहत फजल हसीब का कहना है कि फरवरी में ज़ायद अज 1 लाख सयाह कश्मीर आए और उन्हें उम्मीद है कि आइंदा दिनों में सैलानियों की आमद में मजीद इजाफा होगा। अच्छा लगा, सब कुछ मतलब जैसा सोचा था मैंने वैसा ही लगा और काफ़ी सुंदर है। जैसे मैंने लोगों से सुना है कि केरला और श्रीनगर जो है, तो श्रीनगर जो है और ये जो कश्मीर है अलग ही है, जिसे बोलते हैं ना स्वर्ग बोलते हैं, वैसा लग रहा मेरे को। लोग अच्छे लगे, बहुत सपोर्टिव हैं। हम आए 2-3 दिन पहले, अभी तक कश्मीर देखा, आपका निशाद गार्डन देखा और दूसरा वाला कौन सा शालीमार बाग देखा, जहाँ पर आए बादामवारी। बीच में 2 दिन गुलमर्ग गए थे, बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, बहुत ज़्यादा अच्छा था। बहुत मैंने लोग भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ही स्वीट हैं, बहुत सब ख्याल रख रहे हैं हमारा। ठीक है, खाना वगैरह भी आप लोगों का काफ़ी अच्छा है, थोड़ा डिफरेंट है हम लोग जो खाते हैं उससे, लेकिन काफ़ी अच्छा है। बच्चों ने स्नोमैन बनाया, गुलमर्ग में बहुत स्नो मिली, बहुत मज़ा आया और हमें तो स्नोफॉल भी मिल गया थैंकफुली। टूरिज्म तो काफ़ी अच्छा, वी हैव हैड मोर देन 1 लाख टूरिस्ट, आई थिंक 1,20,30 हज़ार के करीब जो हैं वो फरवरी में ही आए हैं और मार्च में बिकॉज ब्लूमिंग अभी आहिस्ता आहिस्ता शुरू होगी तो मार्च में फिर आप देखेंगे कि नंबर्स और हाई होंगे। तो तैयारी भी बहुत अच्छी है, हमारे डिफरेंट फेस्टिवल्स कुछ बिगर स्केल पे, कुछ स्मॉलर स्केल पे प्लान्ड है, थोड़ा यूस्मोक ब्लॉसम में है, थोड़ा
वाइल्ड टूलिप्स पामपुर में है, थोड़ा ज़ाबरवन में है, थोड़ा बादामवारी, थोड़ा टूलिप गार्डन में है। इधर जम्मू कश्मीर में सयाहती सरगर्मियां जहां उरूज पर हैं, वहीं फिजाई किराए में बेतहाशा इजाफे के बाद सयाहों के साथ साथ कश्मीर के सयाहती शोबे से वाबस्ता अफराद में तशवीश की लहर पाई जा रही है। होटलर, हाउस बोट मालिकान का कहना है कि चूंकि इस वक्त कश्मीर में सयाहत का रश काफी बढ़ चुका है और उन्हें इस साल अच्छे काम की तवक्को है, ताहम हवाई किराए में इजाफा इसको मुतासिर कर सकता है। इन्होंने कहा कि जहां सयाहती शोबे से वाबस्ता अफराद भी बेतहाशा किराए से मुतासिर होंगे, वहीं सयाहती इंडस्ट्री भी मुतासिर हो सकती है। मुनसिफ टीवी के लिए श्रीनगर से इमरान की रिपोर्ट। साउथ एशिया सेंटर फॉर पीस एंड पीपल्स एम्पावरमेंट ने आज शहर श्रीनगर के मज़ाफ़ात में बाग महताब के शाइनिंग स्टार पब्लिक स्कूल के इश्तराक से एक रोज़ा सेमिनार का इनेकाद किया। इस तकरीब का उन्वान था मुआशरे को रहने के लिए बेहतर जगह बनाने के लिए तलबा की जिम्मेदारियाँ। इसके अलावा स्कूल के असातिज़ा और सैकड़ों तलबा ने शिरकत की। तंजीम के नायब सदर उमर भट्ट ने कहा कि तंजीम तालीमी इदारों में इस तरह की तकरीबात का इनेकाद जारी रखेगी। सेक की एक सरकारी रजिस्टर्ड गैर मुनाफा बख्श और गैर सियासी तंजीम है जो मुआशरे की हमाजहत तरक्की और तालीम, तहकीक और सीखने के अमल को फ़रोग़ देने के लिए काम कर रही है। पब्लिक स्कूल बाग महताब के बच्चों के साथ एक ज़बरदस्त अंदाज में इस थीम को मनोआन लाने में और समाज के ताईं, सोसाइटी के ताईं स्टूडेंट्स का क्या रोल है, बेहतर अंदाज में इस कोशिश को स्कूल के मुंतज़मीन, टीचर्स, फैकल्टी मेंबर्स और समाज के हर वर्ग के लोगों ने एक बेहतरीन अंदाज में कोशिशें जोड़ी। समाज में फैल रहे खराफात को ख़त्म करने के लिए स्टूडेंट्स का एक बेहतरीन रोल रहेगा। साउथ एशिया सेंटर फॉर पीस एंड पीपल्स एम्पावरमेंट की यही कोशिशें लगातार एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को टच करते हुए समाज में इस बिदअत को जो खराफात की शक्ल में आज भी हमें परेशान कर रहा है, नेस्त नाबूद करने में पेश रहेगी। जनूबी कश्मीर के ज़िले कुलगाम के मंड गफन इलाके के एक 10 साला लड़के मोमिन इसहाक तेली ने इलाके में पोल्ट्री सेक्टर को फ़ायदा पहुंचाने के लिए एक पोर्टेबल अंडे का इंक्यूबेटर तैयार किया है, जिसकी कीमत बाज़ार में दस्तयाब इंक्यूबेटर से काफ़ी कम है। देखिए यह दिलचस्प रिपोर्ट। गवर्नमेंट हाई स्कूल मंड में दूसरी जमात के तालिब इल्म मोमिन इसहाक तेली को बचपन ही से ये जानने की जुस्तजू थी कि बाज़ार में रंग बिरंगे चूज़े क्यों आते हैं। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि एक इंक्यूबेटर गर्म दर्जे हरारत में अंडे रखता है जो मुर्गी पालने लगती है। इंक्यूबेटर उमूमन महंगे और साइज़ में बड़े होते हैं, लेकिन इसहाक का इंक्यूबेटर पोर्टेबल है और कीमत भी बहुत कम है। मे देसी कौकड़ तम ठूल त्रावान पूत तम कड़न क्या मे लड़ो पे दिमाग बे कोर मे यूट्यूबस पे सर्च मे वुच तो पत बनो मे अत मे लग ट्राई ठुलन फिरन बे लग स्विच फैन बंद करने खतर यल त्राने खतर पावर बंद करने खतर यल त्राने खतर बे फ्यूज लगित अगर कुछ जाए अत ग डिफेक्ट फ्यूज दज वज फॉल्ट या दज पे लागन यह नौ तो ये इंक्यूबेटर एक वक्त में तकरीबन 50 अंडे निकाल सकता है। हैचिंग के लिए दरकार 37.5 डिग्री का मुनासिब दर्जे हरारत फराहम करता है और पूरे अमल को मुकम्मल होने में 18 दिन लगते हैं। इसहाक ने कहा कि अब तक किसी कंपनी ने इंक्यूबेटर्स बनाने के लिए उनसे राबिता नहीं किया, लेकिन वो इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि लोगों की सहूलत के लिए प्रोडक्ट मार्केट में दस्तयाब हो। इंक्यूबेटर बनाने के लिए मोमिन का सफ़र हमवार नहीं था। ये 3 साल पहले की बात है जब उसने पोर्टेबल एग इंक्यूबेटर बनाने के आइडिया पर काम शुरू किया। उसने सब्र किया और 1 साल बाद उसने मुस्बत नताइज हासिल करना शुरू कर दिए, जिसके नतीजे में इंक्यूबेटर मौजूदा साल में फ़ाल हो गया। मेहनत अम खतर मतलब युत कह मे बासान युत अमे एज हूँ बच कर यह रात कम नंदर तरान पे मे ठूल मज थ यह दपान पाई पावर मा गो हीट मा गई कम अत क्या मा गो तकरीबन मे बासान अगर यह 8-9 घंटे नंदर करान या 7 घंटे मे बासान यह 3 घंटे नंदर करान टोटल रात खाली नजर थवान पे मुश्किल अम खतर तुलन मुश्किल।
मोमिन का कहना है कि एक अंडे के इंक्यूबेटर को पूरे अमल को मुकम्मल करने के लिए तकरीबन 3 हफ्तों तक मुसलसल बिजली की फराहमी की ज़रूरत होती है, लेकिन कश्मीर में बिजली की कटौती के निज़ामुल औक़ात को देखते हुए मुझे मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ा। मैंने ये ख्याल तकरीबन तर्क कर दिया। मोमिन ने कहा कि वो चाहते हैं कि उनके अंडे के इंक्यूबेटर से मकामी पोल्ट्री इंडस्ट्री को फलने फूलने में मदद मिले, जो सर्दियों के दौरान चैलेंजों का सामना करती है। मुंसिफ टीवी के लिए कोलगाम से आरिफ रशीद की रिपोर्ट। और आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। अच्छिन इलाके में कश्मीरी पंडित की हलाकत की तहकीकात शुरू, रियासती तहकीकाती एजेंसी करेगी जांच। मुझे खुशी है कि राहुल गांधी की मुअत्तली से अपोजिशन पार्टियां मुत्तहिद हुई, महबूबा मुफ्ती का बयान, कहा मुल्क की जमहूरियत खतरे में। इंडियन नेशनल कांग्रेस जमहूरियत को बचाने के लिए सब कुछ करेगी, साबिक मरकजी वजीर सलमान खुर्शीद का बयान। और नेवा कॉलोनी डांगरपुरा के रिहायशियों का स्मार्ट मीटर्स की तनसीब पर एहतजाज। जेकेएल डायरी में आज बस इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब।